Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students to Government Degree College Chavatni. Today we will discuss about using the scientific method written by John Terrell Bernard and Lon Edwards. Dear second year students, you must work hard, as you all know that now your future depends upon the marks you will get in second year, and if you lose this chance you will have to repent throughout your life. So be conscious and work hard. Now let's start our lesson using the scientific method. First of all, I will give you the detail of this lesson. The writers say in this lesson that we have benefited greatly from the use of scientific method. The scientific method has changed people and their living conditions in practical life. It has helped us to control diseases by telling us its causes and remedy. It has helped us to adopt better sanitary arrangements in our cities and towns and made life more comfortable. It has helped us to get adequate supply of water to meet the demands of the growing population. It has invented practical methods of growing more food and preserving it in a healthful way. We can now have a large variety of food throughout the year. The food preserved and canned by machines is as nutritious and enjoyable as fresh vegetables, fruit and meat, etc. This food can be obtained by people living almost anywhere in the world. Scientific method has enabled us to improve our ways of building houses, our methods of communication and transportation, and even the ways we spend our leisure time. Scientific method has changed our attitude to life. We have become critical in our beliefs and ideas. We now accept only those ideas which have some sound basis. In other words, we have acquired a scientific attitude. We have overcome superstitions which were a constant source of fear for our forefathers. Science has taught us that superstitions are false and our good luck or bad luck has nothing to do with the stars, evil spirits, black cats or broken mirrors. राइटर इस लेसन के अंदर बुनियादी तौर पर डियर स्टूडेंट्स जो है वो साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल के बारे में हमें बताता है कि साइंसी तरीक़ेकार को इस्तेमाल करके हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे हैं, हमने बहुत ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीद हुए, फ़ायदा उठाया। साइंसी तरीक़ेकार ने लोगों को और उनके हालात ज़िंदगी को बदल दिया है। हमारी अमली ज़िंदगी में उसने हमें बीमारी की वजूहात और उसके इलाज के बारे में बताकर उसको काबू पाने में हमारी मदद की है। उसने हमें सिखलाया है कि हम अपने शहरों और कस्बों में बेहतर निज़ाम जो है वो उसको इख्तियार कर सकें, और उसने हमारी ज़िंदगी को आरामदेह बना दिया है। अब हम बीमारियों के ख़िलाफ़ अच्छे तरीके के साथ लड़ सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट जो डिजीज़ हैं उनकी वैक्सीनेशन मौजूद है। हम लोग अब बेहतर तरीके से घर बना रहे हैं। हमारी मवासलात और ज़राए आमदोरफ़्त जो है वो बेहतर हो चुके हैं। हमारे आबा अजदाद जो थे वो सुपरस्टिशियस थे, वो तोहम परस्त रवैयों पर यकीन रखते थे। वो समझते थे कि काली बिल्ली अगर सामने से गुजर जाए तो आपको नुकसान हो सकता है। ब्रोकन मिरर, टूटा हुआ शीशा, वो नुकसानदेह समझते थे कि अगर वो कोई शीशा देख रहा है और शीशा टूट गया तो वो ये समझते थे कि ये डेंजरस हो गया। और इसी तरीके के साथ नंबर 13 नंबर जो है, डिजिट जो है, वो लोग उसको मनहूस समझते थे। और खाना जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ग्रोइंग सीजन के अंदर ही लोगों को मिलता था। यानी अगर समर की सब्जी है तो समर में मिलेगी, विंटर की है तो विंटर में मिलेगी। मगर अब साइंस ने हर चीज को जो है वो चेंज करके रख दिया है। साइंस ने हमारी जिंदगियों के अंदर इनकलाब बर्पा किया है। हमारी तोहम परस्तियां, जो सुपरस्टिशंस जो हैं वो खत्म हो गई हैं। हम लोग ज्यादा सोचते हैं, हमें समझ आना शुरू हो गई है कि हमारी जो अगर कोई मसला है हमारे साथ तो उसकी एक लॉजिक मौजूद है। ये नहीं कि वो जिन्नात की वजह से है, ये चुड़ैलों की वजह से है। तो लॉजिकल एंडिंग ऑफ समथिंग जो है वी हैव गॉट नाउ। तो इसके अंदर यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, तो बेटे इसके अंदर वो तमाम चीजें, वो तमाम एलिमेंट्स जो हैं
वो जो है वो लिखे गए, जो आपके राइटर्स ने हमें बताया कि इसको, साइंस को इस्तेमाल करके हम लोग जो है वो बेहतर जिंदगी बनाने के काबिल हो गए। नाउ ओपन योर बुक्स एंड ओपन द लेसन यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। अब हम इसकी ट्रांसलेशन जो है वो देखते हैं। All of us have benefited greatly from the use of scientific method in solving problems such as those dealing with the maintenance of health. Maintenance का synonym जो है वो conservation हो सकता है, conservation, safeguard हो सकता है या care हो सकता है। All of us, हम में से तमाम लोग have benefited, उन्होंने फायदा उठाया greatly from the use of scientific method, साइंसी तरीके के इस्तेमाल से in solving problems, मसाइल के हल के लिए, जैसा कि those dealing with the maintenance of health, जिनका ताल्लुक सेहत के साथ है, and production, और पैदा करना, and preservation, preservation कहते हैं महफूज करना, आप इसका सिनोनिम मेंटेनेंस कर सकते हो, preservation का मेंटेनेंस, या इसका प्रोटेक्शन कर सकते हो, या इसका सेफ गार्ड भी कह सकते हो। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड्स, इसका ताल्लुक खाने को महफूज करने के साथ था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ आवर होम्स, हमारे घरों की तामीर जो थी। एंड द इंप्रूवमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन जराए अबलाग को कहा जाता है, जैसे टेलीफोन वगैरह है, आप इसको ट्रांसमिशन कह सकते हो, टॉक कह सकते हो, कन्वर्सेशन कह सकते हो। नॉट ओनली हैव आवर वेज ऑफ लिविंग चेंज, साइंस ने ना सिर्फ हमारा रहन सहन बदल दिया, बट पीपल देमसेल्व्स हैव आल्सो बीन चेंज, मगर लोग भी बदल गए हैं। टुडे वी आर बेटर एबल, आज हम बेहतर काबिल हो गए टू एक्सप्लेन हैपनिंग्स, कि हम उन तमाम वाकयात को बयान कर सकें विच यूज्ड टू बी कंसिडर्ड, जिनको समझा जाता था। कंसिडर का मतलब बेटे थिंक करना, सोचना। स्ट्रेंज, अजीबो गरीब, एंड मिस्टीरियस, मिस्टीरियस का जो है वो पुरस्कार होता है, आप इसका सिनोनिम जो है वो एनिग्मेटिक लिख सकते हो, ENIGMATIC। स्ट्रेंज एंड मिस्टीरियस, जिनको अजीबो गरीब और पुरस्कार समझा जाता था। ऑल्दो देयर इज स्टिल नीड फॉर इंप्रूवमेंट, अब भी जरूरत है इसको बेहतर करने की। वी आर नॉट जनरली लेस फियरफुल देन आवर फादर्स, अब हम अपने आबा अजदाद से कम खौफजदा है, यानी जितना वो डरते थे अब हम उतना नहीं डरते। एंड ग्रैंडफादर्स वर, और जितना हमारे आबा अजदाद डरते थे। वी आर ऑल्सो मोर क्रिटिकल इन आवर थिंकिंग देन आवर एंसेस्टर्स, क्रिटिकल कहते हैं तनकीदी, इसको आप लोग लिखते हैं स्केप्टिकल, SKEPTICAL, स्केप्टिकल। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स कहते हैं आबा अजदाद को, एंसेस्टर्स आबा अजदाद, फोरफादर्स आप इसका कह सकते हो। अब हम अपने आबा अजदाद से ज्यादा सोचना शुरू कर दिया हम लोगों ने। This lesson should help you understand how the use of scientific method has improved living conditions. ये जो लेसन है इसको ये आपको बताएगा कि कैसे जो साइंटिफिक मेथड है उसने हमारी लिविंग कंडीशन को बेहतर कर दिया है, एंड चेंज पीपल, और लोगों को बदल के रख दिया है। इट शुड आल्सो हेल्प यू अंडरस्टैंड, यू नो हाउ यू कैन मेक बेटर यूज ऑफ द साइंटिफिक मेथड। ये हमें बताएगा कि आप कैसे साइंटिफिक मेथड को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो इन योर डेली लाइफ, एवरीडे लिविंग, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ साइंस जो है वो बेटर कंट्रोल ऑफ डिजीज है, बीमारियों का हमने बेहतर कंट्रोल करना सीख लिया है। इफ यू हैड बीन बोर्न 200 years ago, अगर आप 200 साल पहले जो है वो पैदा होते, you would about 7 out of you would have had about 1 chance or in 8 of living to be 1 year old, आपके पास 8 में से एक मौका होना था कि आप जिंदा रहते 1 साल तक। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, इन दोज डेज, उन दिनों में, अबाउट 7 out of 8 बेबीज, 8 में से 7 बच्चे डाइड बिफोर रीचिंग देयर फर्स्ट बर्थडे, अपनी पहली सालगिरह मुकम्मल होने से पहले जो थे वो मर जाते थे। सपोज का मतलब होता है फर्ज करना, एस्यूम करना, ASSUME। You had been an unusually strong little fellow, आप फर्ज कर लो कि आप बहुत मजबूत थे, and had lived through that first year, और आपने वो पहला साल मुकम्मल कर लिया, मतलब आपकी इम्यूनिटी लेवल बहुत अच्छा था। वेरी लाइकली, बिल्कुल ऐसे ही, बिफोर यू वर 6 years old, अब इससे पहले कि आप 6 बरस के होते, you would have had small pox, आपको चीचक निकल आती, and by the time you reach the age of 12, और इससे पहले कि आप 12 बरस के होते, you would undoubtedly have had measles, तो आपको बिला शक्को शुबा, अनडाउटेडली, श्योरली आप इसको कह सकते हो, श्योरली, तो आपको खसरा निकलता, वोपिंग कफ, ये सारी बीमारियां, स्कारलेट फीवर एंड डिफ्थीरिया, और खन्नाक का मर्ज आपको हो जाना था। इवन देन योर बैटल कहते हैं वॉर फॉर सर्वाइवल, जो आपकी बचने के लिए कोशिश थी,
for life was not over, तो आपकी बचने के लिए जो कोशिश थी वो तब भी खत्म ना होती। येलो फीवर, मलेरिया, टाइफस, कॉलरा, टाइफॉइड फीवर एंड इवन इन्फ्लुएंजा, ये सारी बीमारियां और हत्ता के नज़ला जुकाम वन स्टार्टेड स्प्रेड थ्रू द कम्युनिटी, ये सारे का सारा एक दफा जब शुरू होता तो ये मुआशरे में फैल जाता था। बेटे कम्युनिटी का सोसाइटी आप कह सकते हो, कम्युनिटी, सोसाइटी, मुआशरा। लाइफ वॉज मोस्ट अनसर्टन, जिंदगी बिल्कुल बेचैनी की, बेकरारी की थी। A person who lived to be more than 30 years of age, एक ऐसा आदमी जो अपनी 30 बरस की उम्र कंप्लीट कर लेता, was indeed fortunate, वो वाकई बहुत खुशकिस्मत होता। It is unbelievable, ये वाकई नाकाबिल यकीन है, that such conditions could have existed so short a time ago, कि ऐसी सूरत हाल बहुत पहले वकू पजीर हो रही थी। Today babies are born in hospital, आज के दौर में बच्चे अस्पतालों में पैदा हो रहे हैं, where there is little likelihood of their getting disease, जहां पर likelihood कहते हैं इम्कान बेटे, possibility, probability, जैसे probability या possibility, अब उनके वहां पर बीमारी लगने के चांसेस बहुत कम है। Young people are treated to protect them against smallpox, diphtheria and typhoid fever, जो नौजवान हैं उनको, बच्चे हैं उनको इनके खिलाफ, इन बीमारियों के खिलाफ जो है वो वैक्सीनेशन किया जाता है। टुडे अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट होता है बेटे होप करना, टू लिव टू बी ऑलमोस्ट 70 इयर्स ओल्ड, अब एक आदमी तवक्को रख सकता है कि वो 70 वर्ष तक जिंदा रह ले। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में, मोर देन 30 इयर्स हैव बीन एडेड टू द एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ मैन्स लाइफ। एक्सपेक्टेड कहते हैं मुतवक्की, एक्सपेक्टेड कहा जाता है मुतवक्की, होपफुल जिसे आप लोग कह सकते हैं, होप्ड। इंसान की जो मुतवक्के जिंदगी है उसमें 30 बरस का इजाफा हो गया है। These changes have been made possible by the use of the scientific method, इनको मुमकिन बनाया गया सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक मेथड के इस्तेमाल से, to solve such problems, ऐसे मसाइल के हल के लिए, as the cause of disease and its prevention, जो कि इस बीमारी की रोकथाम, प्रिवेंशन कहते हैं रोकथाम, बचाव, आप इसका लिखो हिंड्रेंस, HIN, प्रिवेंशन का हिंड्रेंस, HINDRANCE, जो कि इसकी रोकथाम के लिए मुमकिन हो सका। अब दूसरी बेटे बेटर सैनिटरी कंडीशन, बेहतर सफाई की जो सूरत हाल है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, इमेजिन होता है थिंक करना, बिलीव करना, अब ये सोचना भी मुश्किल हो गया दैट सैनिटरी कंडीशन इन सम ऑफ आवर लार्ज सिटीज वर लाइक ओनली 100 years ago, कि हमारे शहरों के अंदर जो सफाई की सूरत हाल थी कुछ 100 साल पहले, इन आवर सिटीज वर लाइकली 100 साल पहले, इनटू द नैरो, नैरो कहते हैं तंगो तारीख, अनपेव्ड, कच्ची, अनब्रिक्ड को कहा जाता है, एंड पुअरली ड्रेन, और जिनमें निकासी आब का निजाम बहुत खराब था। सिटी, स्ट्रीट, हाउस होल्ड, गार्बेज, घर का जो गार्बेज कहते हैं रिफ्यूज, REFUSE, रिफ्यूज आप इसको कह सकते हो, आप इसका रबिश कह सकते हो, RUBBISH, फिल्थ आप इसको कह सकते हो। And other refuse were thrown, वो बाहर गलियों में फेंक दिया जाता। Animals wandered, wander का मतलब होता है घूमना फिरना, आप इसका रोम लिख सकते हो, ROAM, रोम, आप इसका सिंपल मूव अबाउट भी लिख सकते हो। Wandered through the streets, ये गलियों में घूमते। Feeding upon the garbage, जो कूड़ा, गार्बेज कहते हैं कूड़ा क्रिकेट खाते। आउटडोर टॉयलेट्स, घर के बाहर जो लोग टॉयलेट्स यूज करने के लिए जाते। मैनी ऑफ देम सिचुएटेड, वो वहां पर, उनमें से ज्यादातर वहां पर वाक़ थे, वेयर ह्यूमन वेस्ट, जहां पर इंसानी फुजला ड्रेन्ड इनटू द वेल्स, जो बहकर कुओं में चला जाता, फ्रॉम विच पीपल ऑब्टेन ड्रिंकिंग वाटर, जहां से लोग पीने का पानी हासिल करते थे। टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड, पेव्ड कहते हैं ब्रिक्ड, पक्की, आज हमारी गलियां पक्की हैं, एंड वेल ड्रेन्ड, और उनमें निकासी आब का निजाम बहुत अच्छा है, एंड दे आर क्लीन्ड रेगुलरली, और उनको बाकायदगी के साथ साफ किया जाता है। इट इज अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के खिलाफ है, टू थ्रो गार्बेज इन द स्ट्रीट्स, के गलियों में कूड़ा क्रिकेट फेंका जाए। सीवेज, जो सीवेज का पानी है, जो गंदा पानी होता है, फ्रॉम ऑल द सेक्शंस, सेक्शंस कहते हैं पार्ट्स, तमाम हिस्सों से ऑफ सिटी, शहर के, इस कैरिड, उनको लाया जाता है थ्रू सील्ड पाइप्स, सील्ड पाइप्स के जरिए से लाया जाता है बेटे उनको, टू द डिस्पोजल प्लांट्स, जहां से उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, जाय कर दिया जाता है। थ्रू द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीकेकार के इस्तेमाल से, इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेट होता है बयान करना, आप इसका इंडिकेट लिखो, INDICATE, इट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड, ये बयान किया जा चुका है, दैट अनसैनिटरी कंडीशंस, के सफाई की जो खराब सूरत हाल है, कॉज द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, ये बीमारियों के फैलाव का सबब बनती थी, लाइक टाइफाइड फीवर, कॉलरा एंड डायसेंट्री, हैजा वगैरह सारा ये आ जाता है।
टुडे मोस्ट सिटी गवर्नमेंट्स, आज के दौर में जो ज्यादातर शहर की हुकूमतें हैं, हैव डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन, उनके पास सफाई का महकमा मौजूद है। डिपार्टमेंट्स ऑफ सैनिटेशन, सफाई का महकमा, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन जो है वो क्लीनलीनेस को कहते हैं, which keep the cities clean, जो शहरों को साफ रखते हैं, and thereby prevent spread of certain diseases, और ऐसी बीमारियों की रोकथाम जो है उसको रोक सकते हैं। A century ago, एक सदी पहले, it was a common practice, ये आम मामूल था in many cities, बहुत से शहरों में, to bring water by the bucketful, बकेट बाल्टी को कहते हैं, और बकेटफुल बाल्टी भर भर के पानी लाया जाता था फॉर हाउस होल्ड यूज, घर के इस्तेमाल के लिए। वाटर हैड टू बी कैरिड अ कॉन्सिडरेबल डिस्टेंस, पानी काफी, कॉन्सिडरेबल कहते हैं माकूल, काफी ज्यादा, इसका आप सिनोनिम लिखो सिग्निफिकेंट, कॉन्सिडरेबल का बेटे सिग्निफिकेंट, SIGNIFICANT, काफी फासले से लाना पड़ता, फ्रॉम द वेल कुएं से टू द होम, घर तक। It was therefore used very sparingly, sparingly कहते हैं बहुत एहतियात के साथ, कफायत शाराना अंदाज के अंदर। आप इसका लिखो फ्रूगली, FRUGALLY, इसको बहुत एहतियात से इस्तेमाल किया जाता फॉर बाथिंग एंड क्लीनिंग पर्पसेस, नहाने और सफाई के मामलात के लिए। Often it came from sources, अक्सर ये ऐसी जगहों से लाया जाता that contain diseases, जिसमें बीमारियां होती, producing germ, बीमारी पैदा करने वाले जरासीम होते। Towns and cities today have water supply system, अब शहरों और देहातों के अंदर जो है, शहरों और कस्बों के अंदर, टाउन कस्बों को कहते हैं और सिटीज जो है वो शहरों को, टुडे है वाटर सिस्टम, उनके अंदर वाटर सप्लाई का सिस्टम है, दैट यूजुअली प्रोवाइड वाटर एनफ फॉर द हाउस होल्ड यूज, जो कि घर के इस्तेमाल के लिए काफी पानी मुहैया कर देते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इन द ग्रोथ ऑफ सिटीज, शहरों के फैलाव में सबसे बड़ी जो वजह है, हैज बीन टू प्रोवाइड सफिशिएंट, सफिशिएंट कहते हैं एनफ को। अब ये मसला है, शहर जब फैल रहे हैं, देहातों से लोग निकल के शहरों की तरफ जा रहे हैं, कि अब उनको पानी मुहैया करना पड़ता है टू मीट द मैनी नीड्स ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ताकि बढ़ती हुई आबादी की जरूरियात को पूरा किया जा सके। लॉस एंजलिस हैड सॉल्व द प्रॉब्लम, लॉस एंजलिस जो कि अमेरिकन सिटी है, उसने इस मसले का हल किया बाय ब्रिंगिंग वाटर टू द सिटी, वो शहर से पानी लाए फ्रॉम द क्लोराडा रिवर, दरिया क्लोराडा से, जो कि 544 किलोमीटर वहां से दूर है, कैरिड थ्रू अ पाइपलाइन, इसको एक पाइपलाइन के जरिए से लाया गया। और एक्वेडक्ट, एक्वेडक्ट कहते हैं पक्का नाला का रेज, जो आप मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ते हो, पाइपलाइन को कहा जाता है या पैसेज को कहा जाता है। 1000 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर, हजारों लाखों मिलियन वाटर जो है, लीटर वाटर जो है, आर डिलीवर्ड टू द डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, इस कस्बे को, इस जिले को दिया जाता है। दिस इज अ रिमार्केबल एडवांस, ये काफी रिमार्केबल कहते हैं प्रोमिनेंट, सिग्निफिकेंट, ये काफी ज्यादा तरक्की है फ्रॉम द बकेट सिस्टम ऑफ सप्लाइंग होम विद वाटर, इससे पहले कि हम लोग जो है वो घरों को वाटर सप्लाई सिस्टम जो है वो बाल्टियों के जरिए से दिया करते थे, यानी कि अब हम उससे जो है वो आगे आ गए हैं। मोर एंड फूड एंड बेटर फूड, ज्यादा और बेहतर खाना, चेंजेस हैव टेकन प्लेस, अब तब्दीलियां रूनुमा हो गई हैं टू इन आवर ईटिंग हैबिट्स, हमारी खाने पीने की आदत में। थ्रू द यूज ऑफ साइंस, साइंस के इस्तेमाल से वी हैव लर्न, हम ये जान चुके हैं दैट इट इज हेल्पफुल, कि ये बहुत ज्यादा सेहतमंदाना चीज है, टू ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, कि हम ज्यादा किस्म का जो है वो खाना खाएं। एंड वी हैव लर्न हाउ टू प्रोवाइड आवरसेल्फ विद अ वैरायटी ऑफ फूड्स, और हमने ये सीख लिया है कि हम अपने आप को ज्यादा खाना कैसे दे सकते हैं थ्रू आउट द ईयर, सारा साल। पीपल हु लिव्ड अ सेंचुरी अगो, वो लोग जो एक सदी पहले जिंदा रहते थे, प्रोबेबली, प्रोबेबली का कहते हैं पॉसिबली, इम्कान है ये चीज, enjoyed eating as much as we do today, कि वो भी इतना ही जो है वो खाने को एंजॉय करते थे जितना कि हम करते हैं, as much as we do today, but they could not have as many different kinds of food, मगर उनके पास इतनी इकसाम का खाना जो था वो नहीं था। Most of their foods had to be produced on their own farms, उनमें से ज्यादातर उनका खाना अपने खेतों में पैदा होता, on their own gardens, अपने बागात में। Since fresh vegetables, फिर भी जो ताजा सब्जियां थी, could be obtained, obtain होता गेट करना, हासिल करना, उनको हासिल किया जा सकता था only during the growing season, सिर्फ उनकी पैदावार के मौसम में। People living in cold climates, क्लाइमेट एरिया जो है, ठंडे इलाके जो हैं, had none during the winter months, उनके पास मौसम सरमा में खाने के लिए कुछ ना होता था। Thrifty, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका सिनोनिम अक्सर आ जाता है फ्रूगल, FRUGAL, जो थ्रिफ्टी हाउस वाइफ्स होती थी, किफायतशार किस्म की जो खवातीन थी, प्रिजर्व, प्रिजर्व होता है सेव करना, देयर होम ग्रोन
वेजिटेबल्स, वो अपने घर की पैदा की हुई सब्जियों को महफूज कर लेती, एंड फ्रूट्स और फलों को बाई कैनिंग डिब्बों में बंद करके, पिकलिंग या उनका अचार डाल के, पिकल का आप सॉल्टिंग लिख सकते हो, और ड्राइंग देम या उनको खुश करके फॉर यूज इस्तेमाल के लिए ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, उस ठंडे मौसम में। मीट्स वर प्रिजर्व, गोश्त महफूज किया जाता बाय सॉल्टिंग, नमक लगाकर, एंड ड्राइंग और बाय फ्रीजिंग, या उनको खुश करके यानी कि उसको डिहाइड्रेट कर दिया जाता, उसमें से पानी ओमिट कर दिया जाता, और बाय फ्रीजिंग या उनको ठंडा करके व्हेन द वेदर वाज कोल्ड एनफ, जब मौसम काफी ठंडा होता। सी फूड जो समुद्री खाना था बट जनरली अवेलेबल, वो अमूमी तौर पर अवेलेबल था ओनली अलोंग द कोस्ट, कोस्ट कहते हैं साहिल समंदर, वो सिर्फ और सिर्फ साहिल समंदर के साथ साथ था। फिश एंड शेलफिश जो मछलियां और घोंगे थे कुड बी ईटन सून आफ्टर दे वर कॉट, उनको फौरन खा लिया जाता जब वो पकड़े जाते। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस कहते हैं कता नजर, इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर पीपल लिव टुडे, लोग आज कहां रहते हैं लोग, दे कैन ऑब्टेन सम फ्रेश फूड, वो आज भी ताजा फल खा सकते हैं, मीट्स गोश्त एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां थ्रू आउट द ईयर, सारा साल। बाय द क्विक फ्रीज मेथड, फौरन ठंडा करके खाने से वेजिटेबल सब्जियां, फ्रूट्स फल, सी फूड एंड मीट्स और गोश्त ऑफ वेरियस काइंड्स और मुख्तलिफ अक़साम के होते कैन बी प्रिजर्व, प्रिजर्व होता है सेव करना, उनको महफूज कर लिया जाता सो दैट दे आर बोथ न्यूट्रिशियस एंड एंजॉयबल। न्यूट्रिशियस जो है वो नोरिशिंग को कहते हैं, नोरिशिंग या हेल्थफुल, हेल्थफुल आप कह सकते हो, नोरिशिंग या हेल्थफुल। न्यूट्रिश एंड एंजॉयबल, वो एंजॉयबल भी होता है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग, आज के दौर में सिलेक्ट किया जाता है, ग्रेड अलग अलग किया जाता है, एंड प्रोसेसिंग फूड, और प्रोसेस किया जाता है उस खाने को, हैड रिमूव द रिस्क ऑफ डेंजर ऑफ पॉइजनिंग, अब उसने उस खतरे को कम कर दिया। पॉइजनिंग कहते हैं जहर आलूद हो जाना, पहले जब उसको महफूज किया जाता था तो वो खतरा होता था कि वो जहर आलूद हो जाए। फ्रॉम केन फूड, वो डिब्बे वाले जो है वो खानों से, डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ, डिहाइड्रेशन कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर, और द रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम सच फूड्स एज मिल्क, एग्स, पोटैटोज एंड एप्पल्स, इनको आज महफूज किया जाता है, इन सब सब्जियों को, अंडों को, फलों को, सेब को, कि उसमें से पानी रिमूव कर दिया जाता है। हैज प्रूव्ड अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन, ये आज के दौर में किसी चीज को महफूज करने का अमली तरीका बन चुका है। आवर ईटिंग हैबिट्स, हमारी खाने पीने की जो आदत है, आर नॉट द ओनली थिंग्स इन आवर लाइफ चेंज द यूज ऑफ साइंस, वो सिर्फ साइंस ने सिर्फ खाने पीने की आदत को नहीं बदला, बिकॉज वी हैव यूज्ड साइंस टू लर्न मोर अबाउट द प्रोसेसेस एंड द मटेरियल्स इन आवर सराउंडिंग एंड अबाउट द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग देम, क्योंकि हमने अपने इर्द गिर्द की चीजों के बारे में जान लिया और उन पर हमने अपना अबूर हासिल कर लिया। कंट्रोल होता है बेटे ओवरकम करना। We have been able to improve, improve होता है बेटर करना, a way of building houses, अब हम अपने घरों को बेहतर अंदाज में बना रहे हैं। Our methods of communication, हमारा कम्युनिकेशन जराए अबलाग का निजाम, एंड ट्रांसपोर्टेशन, और जराए नकलो हमल, ट्रांसपोर्टेशन से मुराद गाड़ियां, मोटरसाइकिल वगैरह जो है, और कम्युनिकेशन से मुराद सेल फोन के जरिए से मोबाइल फोन यानी कि टेलीफोन, एंड इवन द वे वी स्पेंड आवर लेयर टाइम, लेयर कहते हैं स्पेयर, और हत्ता कि हमारा जो फारिग वक्त था वो भी अब बदल गया। जैसे पुराने दौर में लोग कहानियां सुनाते थे और आज के दौर में हम लोग लैपटॉप यूज करते हैं, हम लोग नेट यूज करते हैं, तो हमारा टाइम चेंज हो गया है, हम किस तरह उसको गुजारते हैं। बेटर एटीट्यूड्स, हमारे एटीट्यूड रवैये बेहतर हो गए। बाय एन एटीट्यूड, एटीट्यूड से वी मीन हम मतलब लेते हैं द वे वी फील टुवर्ड्स सम आइडिया और सम इवेंट, जो हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं। इफ अ पर्सन बिलीव्स, अगर कोई बंदा यकीन रखता है दैट वीयरिंग सम काइंड ऑफ अ चार्म, चार्म कहते हैं तावीज, लक ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं, स्पेल SPELL, लक ऑब्जेक्ट, विल प्रिवेंट हिम फ्रॉम हैविंग बैड लक, अगर कोई बंदा सोचता है कि कोई तावीज पहन के वो अपनी आपको जो है वो बुरी किस्मत के से जो है वो बचा सकता है, एंड विल फील अनकंफर्टेबल विदाउट इट, और इसको पहने बगैर वो अपने आप को बेटे अनकंफर्टेबल जो है वो फील करेगा, यानी कि वो बेहतर फील नहीं करेगा। फीलिंग विच इन्वॉल्व फियर्स, ऐसी जो फीलिंग्स हैं जिनके अंदर खौफ होता है, सच एज दिस इज कॉल्ड सुपरस्टिशंस, इस किस्म की इनको हम लोग बेटे क्या कहते हैं, हम लोग इनको सुपरस्टिशंस कहते हैं। सुपरस्टिशंस तो हम को कहते हैं, फॉल्स बिलीफ्स जो होते हैं हमारे, या फैलेसी को कहा जाता है, FALLACY, फैलेसी या फियर। सुपरस्टिशियस पीपल, जो तोहम परस्त लोग होते हैं, बिलीव यकीन रखते हैं इन साइंस ऑफ गुड और बैड लक, अच्छी और बुरी किस्मत के निशानों पर, एंड देयर लाइव्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच साइंस, और उनकी जिंदगियों पर इसका असर बहुत ज्यादा होता है।
सुपरस्टिशियस बिलीव्स, तो हम परस्तियों के जो अकायद हैं, आर बीइंग ओवरकम बाय यूजिंग द साइंटिफिक मेथड, इनको साइंटिफिक मेथड को यूज करके, इस्तेमाल करके हमने किया है। टू डिमॉन्स्ट्रेट एक्सप्लेन करना, दैट देयर इज नो साउंड बेसिस ऑफ देम, कि इनकी कोई खास वजह नहीं है। फ्यू पीपल टुडे बिलीव, कुछ लोग आज भी यकीन रखते हैं, दैट डिजीजेस आर कॉज्ड बाय इविल स्पिरिट्स, कि जो बीमारियां हैं वो बुरी रूहों की वजह से होती हैं। थ्रू दो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं बेटे इल्म फल्कियात को, इसका आप जो है वो एस्ट्रोमेट्री लिख सकते हो, ASTROMETRY। एंड फॉर्चून टेलिंग, और किस्मत के बारे में बताना, आर स्टिल प्रैक्टिस, अब भी रवाज है। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ एज मेनी पीपल एज दे वंस डिड, मगर वो आज के दौर में लोगों की जिंदगियों पर इतना असर नहीं डाल रहे जितना कभी डाला करते थे। It has been learned, ये बात जान ली गई है, that there is always a good natural reason for everything that happens to people, कि लोगों के साथ जो कुछ होता है उसकी खास वजह मौजूद है। As a result, नतीजे के तौर पर most people no longer fear black cats, अब लोग काली बिल्लियों से नहीं डरते, broken mirrors, टूटे हुए शीशों से, and the number 13 और 13 नंबर से। By the scientific method, साइंसी तरीक़ेकार के इस्तेमाल से, it has been demonstrated, ये बात demonstrate होता है प्रूव होना, साबित हो जाना, एक्सप्लेन होना, ये बात साबित हो गई, that ideas are not necessarily true, कि हर वक्त ख्यालात दुरुस्त नहीं होते, because they have been believed for a long time, सिर्फ इसलिए किसी नजरिए पर यकीन किए रखना कि माजी में इस पर यकीन करते थे, ये बात ठीक नहीं है। हमें अपने आइडियाज को चेंज करना चाहिए। आइडिया मस्ट नॉट बी सपोर्टेड बाय द फैक्ट्स, आज के दौर में आइडिया जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसके साथ क्या होना चाहिए बेटे, हकीकत होनी चाहिए। इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्टेबल, ताकि वो एक्सेप्टेबल हो सके टू द साइंटिस्ट, साइंसदानों को, और टू द पीपल हु यूज द साइंटिफिक मेथड, या उन लोगों को जो कि उसको इस्तेमाल करते हैं। द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट हैव हेल्प पीपल, साइंसदानों की जो डिस्कवरीज हैं उसने लोगों की मदद की है। डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस, ओपन माइंडेडनेस कहते हैं वसी नजरी, इससे लोगों में वसी नजरी पैदा हुई है। दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर द न्यू ट्रूथ्स, अब वो नई सच्चाइयों की तलाश में है। देन टू अस्यूम, अस्यूम होता है फर्ज करना, प्रिज्यूम करना, मासवा इसके कि जैसे वो पहले सिर्फ फर्ज करते थे, दैट व्हाट हैज बीन कंसीडर्ड ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू, कि जो कहा वो हकीकत थी। बिकॉज पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज, क्योंकि लोगों को अब अपने पुराने नजरियात बदलने पड़े एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज। क्यों कि न्यू डिस्कवरीज हो गई मेड बाय द साइंटिस्ट, जो कि साइंसदानों ने की। दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजंस एज फाइनल, अब वो तमाम बातों को फाइनल नहीं समझते। तो इट वाज आवर टुडेज लेक्चर एंड आई होप दैट यू हैव ऑल लर्नड इट वेल, और जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।